तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सको। तू ठाकुर ऊच भगवाना। दंडोत बंधन अनक बार। सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु। डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। परम सत्कारयोग, परम सन्मानयोग, चबर छतर तख्त दे मालिक, बाबियां दे बाबे साहिबे कमाल, दीन दुनिया दे मालिक, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जितने को प्राणी जुड़ बैठे हैं, आओ धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज पंजवीं पौड़ी की आपां रल मिल के शुरुआत करनी है, इस दी विचार करनी है। सब तो पहला इस पौड़ी का पाठ, फिर उस तो बाद इसकी विचार। जिन्नी को मत गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने बख्शी है, उस दे हिसाब दे नाल विचार की जाएगी। एक बेनती है, जो आपां ये विचारां कर रहे हाँ, इहदे विच मेरा अपना कोई अनुभव नहीं है। अनुभव हुंदा है जिहड़ी अपने अंदरों आवाज़ आप निकलती है। सीधी जी गल, मैं भी ग्रंथां नूं पढ़ के घोटे ला के तुहाडे सामने मैं गुरु नानक साहिब जी की विचार जिहड़ी है वो रख रहा हाँ। मेरा मुझमें किछ नहीं, जो कुछ ग्रंथां दे विच लिखिया उन्हां नूं मैं स्टडी करके तकरीबन 4 तो 5 ग्रंथ मैं स्टडी करदा हर एक पौड़ी वास्ते। उहदे हिसाब दे नाल फिर मैं विचार है वो आप जी दे सन्मुख रखदा। इस पौड़ी विच महाराज फरमाउंदे हन, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिया पाओ। दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख ना दंग गुरमुख वेदंग। गुरमुख रहया समाई। गुर ईसर गुर गोरख
ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਨਾਨਕ ਏਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਉੱਥੇ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਥਾਪਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਥਾਪਣਾ। ਥਾਪਣਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਥਾਪਣਾ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਔਲਾਦ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ। ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਕਤ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਨਾਦ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਦ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਐਟ ਏ ਪਲੇਸ।
एक जगह ते परमात्मा नूं तुसीं बिठा नहीं सकते कि परमात्मा इत्थे ही है ते होर किते ओ नहीं है। बड़े ध्यान नाल, परमात्मा इत्थे ही है, होर गॉड कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड। परमात्मा नूं तुसीं एक जगह ते नहीं बिठा सकते। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच बचन असीं पढ़दे आ जाप साहिब दे विच, ताते ना माते, ना ते ओदा कोई माँ है ते ना ओदा कोई बाप है। उन्हों माँ ते बाप की जरूरत नहीं है पैदा करने की। एक गल। दूसरा प्रमाण, ना तिस बाप ना माए किन तू जाया। कौन है जिन्हें तेनू पैदा किया, तेरा ते कोई माँ नहीं है ते तेरा कोई बाप नहीं है। ये असी ये गल सारी सब तो पहला ये गल दृढ़ करिए कि परमात्मा नूं पैदा करन वास्ते माँ ते बाप की लोड़ नहीं। जे उन्हों माँ ते बाप की लोड़ नहीं है तो फिर उन्हों थाप भी कौन सकता है, उन्हों एक जगह ते बिठा भी कौन सकता। आओ अगे चलिए। हुण गुरु नानक देव जी का फलसफा महाराज कहते, गुरु ग्रंथ साहिब का बचन है, कहते पखान गढ़ कर मूरत कीनी दे के छाती पाऊं। कहते तू पत्थरां नूं कहते तराश के एक मूरत बनाई है, उस मूरत नूं बनाउण वास्ते तू मूरत दे उपर भी कहते पैर रखे है, उत्ते तू कहते चढ़िया। मैं कहते पखान गढ़ के मूरत कीनी दे के छाती पाऊं। जे ओ मूरत साची है तो गड़न हारे खाओ। जे ओ मूरत वाकिया ही कहते भगवान है तो जदों ओदे उपर तू छाती ते पैर रखिया सी, उन्हें तेनू क्यों नहीं खा लिया। एक प्रमाण, पत्थरां नूं मूर्ति गुरु ग्रंथ साहब ने बिल्कुल नहीं मन्निया जी, सिरे तो निकारे। मैं एक होर बेनती करा, कई बार आम तौर पर देखा गया साडियां गड्डियां दे विच भी गुरु नानक दी फोटो बनाई हुई है पत्थर दी, गड्डियां दे विच भी साडे वीरां ने लगाईयां, लेकिन नहीं, महाराज ने इसनूं रद्दिया, इनू मुढ़ तो रद्द किया है। महाराज का एक होर प्रमाण, एके पाथर कीजे भाओ। एक पत्थर नाल तू प्यार करदा पिया, मैं किन्ना पिया, इच रब हैगा। दूजे पाथर धरीए पाओ। हुण तुसीं घर तो चल के आए हो, तुहाडे पैरां दे थल्ले की सीगा? पत्थर ही सी ना। एके पाथर कीजे भाओ, दूजे पाथर धरीए पाओ। जे ओह दिओ तां ओह भी देवा। कहते जे वह मंदिर दे विच बैठा पत्थर, कहते तू रब कह रहा, देवता कह रहा, फिर तेरे पैरों के थल्ले भी कहते देवता कहते। मैं नहीं कह रहा, बाबा नामदेव जी का बचन है। एके पाथर कीजे भाओ। देखो बड़े ध्यान दे नाल, थापिया ना जाए। उस परिपूर्ण परमात्मा नूं कोई एक जगह ते नहीं बिठा सकता, एक जगह ते इंस्टॉल करके नहीं कह सकता कि इस मूर्ति दे विच ही परमात्मा। आपां अपनी गुरमत दी विचार करनी है, बाकियां दी विचार वो की करते हैं उन्हां बारे सानू नहीं। सानू धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने की समझाया, असीं ओहदी गल करनी। एके पाथर कीजे भाओ, दूजे पाथर धरीए पाओ। जे ओ देहो तां ओ पी देवा। जे वो कहते देवता तू मानता तो तेरे पैरों थले जिहड़ा पत्थर है वह भी तक कहते देवता है। एक होर प्रमाण, देवी देवा पूजिए भाई, क्या मांगे क्या दे। इन्हां तो कहते तेनू की मिलना, कहते की तू मंगदा पिया। पाहन नीर पखालीए भाई, जल में बूढ़े ते। इन्हां ने आप भी कहते पत्थरां पानी विच डुब जाना ते तेनू भी कहते लैके इन्हां ने डोब देना। पाहन, पाहन मैंने पत्थर, नीर मैंने पानी। पाहन नीर पखालीए भाई, जल में बूढ़े ते। जल में बूढ़े ते महाराज कहते ते बाबा कबीर जी ते एक बड़ा प्यारा बचन करते। बाबा कबीर जी कहते बुत पूज पूज हिंदू मूवे। मेरा बचन नहीं है, बचन करड़ा वै, सुनते हुए सानू थोड़ा औखा लगेगा। बुत पूज पूज हिंदू मूए, तुर्क मूए सिर न्याई। ओयले जारे ओयले गाडे, तेरी गत दोहो ना पाई। एक नू एक कहते मिट्टी विच दबिया गया ते एक नू कहते साड़ता जो ओदा आखिरी समा आया। बुत पूज पूज हिंदू मूए, तुर्क मूए सिर न्याई। ओयले जारे ओयले गाडे, जारे मैंने अग लाती जो हिंदू
ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਓਇਲੇ ਜਾਰੇ ਓਇਲੇ ਗਾਡੇ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਦੋਹੋ ਨਾ ਪਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਈਆ ਕਾਹੂਲੇ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਹੂਲੇ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂਲੇ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਲਿੰਗ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂਲੇ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂਲੇ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ। ਅਵਾਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਾਚੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਾਚੀ ਅਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂਲੇ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂਲੇ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਿਸ਼ਾਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਾਹੂਲੇ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂਲੇ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਿਸ਼ਾਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਉ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆ ਕਿਉਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਪਿਆ? ਕਉ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ। ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾਹ ਮੁਕਾਮਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ, ਦਿਲੇ ਮੈਂ ਖੋਜੋ ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਓਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ, ਦਿਲੇ ਮੈਂ ਖੋਜੋ ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀਤਾ ਨਾ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਨਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਵਿੱਚ ਐੜਾ ਨੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐੜੇ ਦੀ। ਅੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਮਾ। ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੰਨਿਆ। ਨਿਰੰਜਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੇ ਆਪ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ
पता ही नहीं बिल्कुल कि गुरु नानक देव जी महाराज सानू की कहना चाहते हैं। आपे आप महाराज कहते वो परमात्मा आपीने आप साजियो आपीने रचियो नाओ। महाराज कहते दुई कुदरत साजिया कर आसन डिठो चाओ। आपे आप निरअंजन। मैं थोड़े माया के अर्थ करने चाहांगा। निरअंजन वो माया तो रहत है जी ना, तो उहदे विच वो रजोगुण तमोगुण ते सतोगुण ये तिन्ना गुणा तो उपर है, जिन्हों चौथा गुण कहते हैं परम पद, जिन्हों चौथा गुण कहते हैं सहज की अवस्था, जिन्हों चौथा गुण कहते हैं निर्वाण पद। ये सारे इको ही समान अर्थक शब्द आए हैं। सहज अवस्था, परम पद, निर्वाण पद, ये सारे महाराज ने इको ही वरते। वो इन्हां तिन्ना गुणा तो उपर है महाराज। हुण निरअंजन माया की है। आपां 2-4 दिन पहला प्रमाण लए सी माया दे। माया की पहला परिभाषा की है? ये परमात्मा माया तो रहत है। कालक तो जिहड़ी माया की कालक है, इस तो परमात्मा रहत है। महाराज कहते माया किसनों आकी है? क्या माया कर्म कमाए दुख सुख एह जियो बद है हौमे कर्म कमाए। महाराज कहते आ माया जी दुख ते सुख दे विच जिंद बजी हुई है। दुख आउंदा ते रो पैंदा, सुख आउंदा ते भंगड़े पाउण लग पैंदा। जद कि महाराज कहते दुख सुख दोएदार कपड़े पहरे जाए, ये तेनू आउणी है। कहते तू नहीं बच सकता। कहते जे अज दुख है तो कल सुख भी आउणी है, जे अज सुख है तो दुख का भी इंतजार कर। दुखे को सुख अगला। महाराज कहते दुख तो बाद सुख तेरी जिंदगी च आउणे आउणे है। खैर आप अगे चलीए, परंतु मैं एक दो उदाहरण दिया तुहानू। दुख तो बाद सुख किदां? दीवा बलदा, उस बत्ती नू पुछ के देखो, वो बत्ती सड़ रही है, उन्होंने दुख मिल रहा। ते उस बत्ती चों निकली हुई रोशनी दे विच बैठे हुए लोगों नू पुछो, उन्होंने सुख मिल रहा। ठीक है जी। सानू कोई बीमारी हुंदी है, असी डॉक्टर दे कोलों इंजैक्शन लवाने, दवाई खाने, एक दुख है। लेकिन दवाई खाण दे बाद साडा शरीर ठीक हो जाता, ये एक सुख है। ठीक है जी। असी धरती ते चलदे हां, अपनी मंजिल दे वल नूं। धरती ते चलना पैंडा तय करना एक दुख है, मंजिल की प्राप्ति करनी एक सुख है। मंजिल जो मिल गई, आप आराम करते हैं ना, एक सुख है। एक होर देखो, मां दा जनेपे दा समा, जदों मां दे जनेपे दा समा वो एक दुख है, ते जनेपे तो बाद जदों उन्हों पुत्र जां धी दी प्राप्ति हुंदी है, वो उहदे वास्ते सुख है। उदों मां नूं सुख मिल जाता। चलो आप सारे गृहस्थी बैठे हैं, इस काम चो आप सारे लंघे हुए हैं। महाराज कहते ये है दुख ते सुख। तो महाराज ने कहा भी दुख ते सुख आने ही आने हैं, ये इन्हां दा इकट्ठा ही है, जानी कि ये कोई दूर नहीं, वखरे वखरे नहीं है। महाराज कहते जे सुख है तो दुख भी है, जे दुख है तो सुख भी है। चलो अगे चलीए। आपां माया किसनों आखी है? क्या माया कर्म कमाए दुख सुख एह जियो बद है। ये साडी जिंद जड़ी ना दुखां ते सुखां दे विच बद्धी हुई है। ते महाराज कहंदे हौमे कर्म कमाए। अगे चलिए। बाबा कबीर जी का एक बड़ा प्यारा प्रमाण जी। बाबा कबीर जी कहंदे मैं ना बंदगी कर रहा सी बैठा, ते मेरी कहंदे लिव रब नाल कहंदे जुड़ी सी अपने गुरु नाल। ते कहंदे मेरे कोल कहंदे माया आ गई। फिर माया कहंदे एक आई ते मैं उन्होंने भेजती। फिर कहंदे रूप बटा के आई, फिर मैं भेजती। माया बड़े रूप बदलदी है जी। बाबा कबीर जी कहंदे कबीर आई मुझे पै अनेक करे कर भेस। वो मेरी बंदगी नूं तोड़ना चाहती सीगी, मैनू तेरे नालों रब्बा तोड़ना चाहती सीगी। कबीर आई मुझे पै अनेक करे कर भेस हम राखे गुर अपने। मैं फिर अपने गुरु दे अगे मत्था टेकता भी मेरी हिम्मत नहीं, ये तो बच सकता, तू मैनू बचावे ते मैं बच जावां। कबीर आई मुझे पे अनेक करे कर भेस हम राखे गुर अपने उन कीनो आदेश। ते जदों मैं गुरु दे मत्था टेकिया ना, वो माया भी जड़ी है कबीर नूं मत्था टेक के चल गई, कहती तेरा मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आ गल दा ख्याल करो साध संगत जी।
गुरु समर्थ है साडा, गुरु साडा समर्थ है। बस एक गुरु का ओट आसरा, गुरु का पल्ला लैके चलीए। तो बाबा रामदास जी तो इत्थों तक कहते हैं, गुरु रामदास जी महाराज कहते, हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली, सतगुरु दया करे सुख दाता हम लावे अपन पाली। बड़े ध्यान है, अर्थ की है। कहते मैं अन्ना हाँ। हुण आपां इहदी दूजे पासे उदाहरण लईए। एक इंसान अंधा है तो डॉक्टर उहदी अखां दा ऑपरेशन करदा ते उहदियां अखां चो उहनूं दिखाई देण लग पैंदा, वो अपनियां अखां नाल आप देखदा। पर गुरु रामदास जी महाराज कहंदे मैं अन्ना हाँ, रब्बा तू मैनूं अखां दे भी दे पर मैं तां भी अपनियां अखां नाल नहीं देखना। जे मैं पंथ ते चलना ते मैं तेरा पल्ला फड़ के चलना, अपने मर्जी नाल चलांगा, मैं किते ठोकर खा जावांगा। हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली, सतगुरु दया करे सुखदाता हम लावे अपन पाली, हम लावे अपन पाली। कहंदे मैनूं अखां दे भी दे रब्बा, मैं तावी नहीं अपनी अखां नाल देखना, देखांगा मैं तेरी अख नाल ही, मैं तेरा पल्ला फड़ के तेरे पिछे पिछे कहंदे मैं चलांगा। ये गुरु रामदास जी महाराज। मेरे कहण तो भाव कि जदों असी अपनी जिंदगी दे विच भी गुरु दा पल्ला फड़दे हैं ना, मेरी बेनती है, एक ना कवि संतोख सिंह जी ने ना सूरज प्रकाश दे विच 101 अरदासां लिखियां। ओदी मैं एक बारी विचार कीती सी कि समस्तपुर साडी जिंदगी दे विच 101 अरदास है। माफ करना मैं तुहानूं लागे लियावां एक ही गल कह के, इत्थों तक जदों बच्चे ते बच्ची दा विआह हुंदा ना, ते विआह तो बाद वो जदों पहली सेजा ते बैठदे आ, उस तों पहलां भी अरदास करना। ये कवि संतोख सिंह जी ने बहुत उन्हां अरदासां दे विच ना, कवि संतोख सिंह जी ने साडा जीवन जिहड़ा बन्निया है। वो कहते भी ये हर एक पल, हाँ ये नहीं चलो कि असी एक गुरुद्वारे खड़े हो गए महाराज कहते, वो कहते भी तू एक सूक्ष्म अरदास अपने अंदर ही अंदर कहते कर सकदा। जरूरी नहीं कि असी हर बारी अरदास खड़े हो के करनी है, बैठ के करनी है, जां अपने हाथ होकर। मैं कहता तू चल रहा है, जा रहा है, किसी दफ्तर पहुंच गया, दफ्तर जाके तू अपना कारज करना, किसी अफसर नूं मिलना, उस अफसर नूं मिलन तो पहला पहला अपनी सूखम अरदास जिहड़ी है वो तू करदा। इन्नी बाकी दूजी नहीं, ये भी नहीं गल भी तू अरदास विच सारा कुछ करना। महाराज कहते सीधी जी अरदास कर, रब्बा मैं तेरी बख्शिश ना आया, अफसर नूं मिलन लगा, मेरे ते मेहर कर। आ भी अरदास होगी, ये भी साडी अरदास होगी। ते एक मैं बेनती करा तुहाडे सामने, अरदास महाराजा रणजीत सिंह ना मुल्तान नूं जितन जा रहे सी, बड़े साखी याद आ गई। ते महाराजा रणजीत सिंह मुल्तान नूं जितन जा रहे थे, ते रस्ते विच उन्हां नूं किसी ने कह दिता, कहंदे कि महाराज इत्थे ना बुद्धू साहिब है, सेवा पंथियां दे विचों होए आ बुद्धू साहिब, और सेवा पंथियां विच ये जिहड़ी साखी आ सुनाई जांदी आ। ते कहंदे आपां इहदे कोलों अरदास कहंदे करवा लईए भी आपां सानूं जिहड़ी फतेह याबता प्राप्त हो जावे। ते महाराजा रणजीत सिंह जी कहते चलो ठीक है, गए आ घोड़े तो उतरे आ, अंदर गए आ 10-12 सिंघां दे नाल अपनी सिपाहियां नाल गए आ। कहते इत्थे बुद्धू साहिब कौन है? की पूछया जाके, बुद्धू साहिब कौन है? बड़े ध्यान नाल सुनियो। वो बेचारा भांडे मांज रहा सी, वो लै गया ते उन्होंने जाके महाराज जी ने कहा, कहते मैं महाराजा रणजीत सिंह है, मैं कहते मुल्तान नूं फतेह करन जा रहा, ते इत्थे बुद्धू साहिब कौन है? वो बेचारा भांडे मांज रहा सी, महाराज दा हाथ फड़िया ते अंदर लै गया जिथे महाराज दा प्रकाश होया। कहंदा तुसीं पुछया बुद्धू साहिब कौन है? कहंदा बुद्धू मैं हाँ, साहिब ओ सामने है। बुद्धू मैं हाँ, साहिब ओ सामने है। कहंदे हाँ दसो? कहंदे साडी अरदास करनी है, असी मुल्तान जितन जा रहे हैं। उस बुद्धू ने अरदास की, सीधी जी अरदास की कि राजा आया तेरे द्वारे ते, है राजा लेकिन बन के भिखारी आया, बन के भिखारी आया ते को दात मंगन वास्ते, ते तू इहदे कारज दे विच आप सहाई हो। अरदास होगी।
ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵਲ ਵਲੇਵੇਂ ਜੇ ਪਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਵਲਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਫੇਰ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੈ, ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ, ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨ ਹੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਤਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋਗ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਨ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਨਾ। ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਬਾ, ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਬਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਨਾ। ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਪਿਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਣਨਾ ਤਨਣਾ, ਇਹ ਜੁਲਾਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ
घूमन लग पिया, कहंदे दुनिया दी ते गल्लां ही होर, रब कहंदे मैनूं पुछ रिहा कि कबीरा दस तेरा घर कित्थे आ। कहण तो भाव कि जिन सेविया तिन पाया मान। महाराज कहंदे फिर अगे, फिर महाराज कहंदे सैन नाई बुतकारिया। सैन नाई भगत, सैन जिहड़ा लोकां दीयां बुत्तियां कढदा सी। बुत्तियां की हुंदियां जी? चाह पानी ते रोटी ते लोकां दे काम करने। पुरातन समय दे वे साडे ਜਿਹੜੇ अमीर ਸੀਗੇ राजे, वो विचारे गरीबां नूं 2 टाइम की रोटी ते चाह पानी दे लिया के अपना काम, इनू कहंदे सी बुत्ती कढनी। सैन नाई बुतकारिया, वो घर घर सुनिया, वो घर घर सुनिया, ओदी सोए जिहड़ी है वो घर च हो गई। फिर की होया अगे जाके, ए बिद सुन के जट रो। भगत धरना जी जट, ए बिद सुन के जट रो, उठ भगती लागा, मिले परतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। मिले परतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। इत्थे ते ये ते गल हो गई है जी, असी हयाती दे विच हां ते सानू मान मिलिया कि जदों असी इस जहान तो जाना उदों भी मान मिलना। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, चला गया। अगे की है, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। उत्थे भी मान, इत्थे कला नहीं मान, लोक विच नहीं, अगे भी जिन सेविया तिन पाया मान। एक होर जी, चलिया पत स्यों वाजा वायसी। चलिया पत स्यों वाजा वायसी। अगली पंक्ति, मानुक क्या विचारा तेह लोक सुनाई सी। कहंदे परमात्मा ओदा नहीं सत्कार करदा, कला लोक विच नहीं। जदों इस तरह दियां गुरमुख रूहां परमात्मा दे घर च जांदियां, परमात्मा 3 लोकां दे विच उहनां दी सिफत जिहड़ी आ ओह करदी है, परमात्मा आप करदे आ। तेह लोक सुनाई सी, मेरे कहण तो भाव कि इस दुनिया विच नहीं, इस दुनिया तो जदों छड्ड के जावांगे उदों भी साडा सत्कार। जिन सेविया तिन पाया मान। अगे कहंदे नानक गाविया, नानक गाविया गुणी निदान। वो जिहड़ा गुणा दा खजाना, इनू ना आपां निदान कहना, धद्दे नाल आवाज देनी अच्छी। धद्दा है, दद्दा नहीं है। जे दद्दा बना देंगे तो निदान बन जाएगा, जिन्हों बच्चा कहने हैं। जे निधान कवांगे तो वह खजाना बन जाएगा। बस आ है, जो अखरां दे एक अखर दे उपर थले हो जाए तो वो अर्थ जिहड़े अनर्थ हो जाते। नानक गाविया गुणी निधान। महाराज कहते वो जिहड़ा गुणा दा खजाना ना परमात्मा, उसकी सिफत करो। तो एक मैं आप जी नूं प्रमाण दे के अगे चला। साध संगत जी, एक है सिफत ते एक है निंदिया। 2 चीज़ां ना। निंदिया दा कोश बड़ा छोटा है, निंदिया दा कोश बड़ा छोटा। मैं तुहाडी निंदिया कर रहा, फर्ज करो 1 दिन कीती, 2 दिन कीती, साल कीती, है ना, तुहानू पता लग ही जाना। फिर तुसी की करना, तुसी एक बारी मैनू समझाओगे भी भाई साहब साड़ी निंदा ना करो, मैं नहीं समझूंगा, ठीक है। फिर तुसी 4 बंदे इकट्ठे करोगे, फिर 4 बंदियां च मैनू बुलाओगे, उत्थे फिर लिखतनामा होवेगा कि उत्थे फिर सज़ा लिखी जाएगी, जे अगे वास्ते निंदिया कीती ते तैनू ये सज़ा, ठीक है। उत्थे फिर मैं रुक जावांगा, निंदिया रुक गई। हुण दूसरा है सिफत। महाराज कहते सिफती भरे तेरे भंडारा, सिफती भरे तेरे, ओदियां सिफतां करी जाओ, सारी उम्र करी जाओ, ओदियां सिफतां नहीं खत्म होनियां। सिफती भरे तेरे। मैं तां बेनती की, महाराज कहते नानक गाविया, ओदियां सिफतां कर। फिर देखोगे सिफत करन तो मिलदा की है जी। एक ना समुंदर दे किनारे 5-6 विद्वान बैठे सीगे, अपने आप नूं विद्वान कहंदे, ते उत्थे एक ना लूण दी डली आई, ते लूण दी डली ने कहा भी तुसी इत्थे क्यों बैठे हो? आखे जी असीं समुंदर दी ना गहराई नाप रहे हैं। वो कहंदी तुहाडा भला हो जे, समुंदर दी गहराई उहदे किनारे ते बैठ के नापी जानी है। जे समुंदर दी गहराई नापनी है तो उहदे विच जाना पवेगा। ते वो कहंदे नहीं नहीं नहीं, असीं कहंदे बाहरों ही नाप रहे हैं, बैठे बैठे सानू 10 दिन हो गए आ, इन्ना समुंदर डूंगा इन्ना। कहंदी रुको,
मैं तुहानू दसदी हां समुंदर की गहराई की है। वो लूण की डली ने छाल मारी तो समुंदर दे विच चली गई। वो जिद्दां जिद्दां थल्ले जा रही है वो समुंदर का ही रूप हो रही है, समुंदर का ही रूप हो रही है। कहण तो भाव जदों असी परमात्मा की सिफत करते हाँ वो इन्ना समर्थ है, वो सानू अपने विच ही मिला लेंदा है। सालाही सालाहे इति सुरत न पाईया, नदियां अते वाह पवे समुंदना जानिए। पवे समुंदना जिस तरह नदियां ते निके निके नाले जदों समुंदर दे विच वड़दे है वो समुंदर दा ही रूप हो जाते हैं। जदों समुंदर दा रूप हो जाते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता आ पानी नदी दा ते आ पानी नाले दा। सालाही सालाहे उस परमात्मा की सिफत कर। अगे ये पौड़ी आनी है जपजी साहब की। सालाही सालाहे ओदी कहते सिफत कर, जिहड़ा सिफत करन दे योग है। सालाही सालाहे इति सुरत न पाईया, नदियां अते वाह पवे समुंद ना जानिए। महाराज कहते हैं नानक गाविए गुणी निधान। वो जिहड़ा गुणा का खजाना, एक प्रमाण होर लै लीए गुणी निधान का। सतगुर गुणी भाई गुरदास जी, सतगुर गुणी निधान है, गुण कर बख्शे अवगन आरे। असी औगन आ रहे हैं जी। किन्ने साडे च औगन है। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगन हमारी। अरदास कर मेरे पुत्रा आके गुरु ग्रंथ साहब जी कहते दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर मैं डुब रहा। कहते मैं एक पत्थर की न्याई मैं डुब रहा समुंदर दे विच, मेरे ते बख्शिश कर, मैनू बाहर कर। महाराज कहते किन्ने औगन है। रोजाना एक सवैया पढ़िया जाता दरबार साहब की धरती ते। जदों गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुंदा, प्रकाश होने तो पहला सवैया पढ़ते हम अवगुण भरे। तुसी सारे आउंदे ते 6:15 ही हो, 5:25 ते टीवी ला के देखियो कल नूं, उदों सवैया पढ़िया जाएगा हम अवगुण भरे। वो रोजाना सवैया पढ़ते, वो तां सवैया पढ़ते हैं कि सिखा तू इस गल नूं दृढ़ कर कि तू औगणा दा भरिया होया है। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही। माफ करना इस वेले तुसी अमृत खा रहे हो ते इतों बाहर जाके तुसी ते मैं सारा दिन आपां विषय विकार की खुराक खानी। आपां मैं तुहानू नहीं कह रहा, आपां सारियां ने। अमृत छाड़ बिखे बिख खाही, माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा स्यो प्रीत लगाई। बस आहो ही साडा प्यार है जी। आ मेरी घर वाली, आ मेरा पुत्र, आ मेरी धी। महाराज कहते हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही, माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास बिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सूख नाम हर शोभा। जदों तुसी गुरु दी शरण में जाते हो ना, फिर महाराज कहते जो शरण आवे तिस कंठ लावे। वो तुहानू सीने नाल आउंदा सानू सारियां नू, लेकिन शरण जाना पवेगा। ये नहीं कि लोग दिखावे ते मत्था टेकता, ये शरण नहीं हैगी। लोग दिखावा मत्था टेकता जी, मैं ते मत्था टेकता। महाराज कहते तू टेक 100 बार टेक, पर जड़ियां चीज़ां नाल लैके आया सी, वो तो फिर तू नाल लै गया किते, वो तो फिर नाल जी कहते पांडजरी चक के लै गया। महाराज कहते नानक गाविए गुणी निधान। उस परमात्मा की कहते सिफत ते जिहड़ी सलाह ना वो तू कर। ते महाराज अगे फिर की कहते हैं, गाविए सुनिए, यही पंक्ति है, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। हाँ बस ये पंक्ति करके आप समाप्ति करांगे। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। उस परमात्मा नू गा, उस परमात्मा नू सुन,
अगे 4 पौड़ियां आउणियां सुणिया दियां। उस परमात्मा नूं गा ते उस परमात्मा नूं सुण, गावीए सुणीए मन रखीए पाओ। आ मैं इत्थे एक साखी जी ला के ते संपता करा। अकबर दे दरबार दे विच सी तानसैन। किद्दां असी गाउणा है ते किद्दां असी सुनना है ते किद्दां अंदर प्यार पैदा होना। बड़े ध्यान नाल इस पंक्ति विच ही है। अकबर दे राज दरबार दे विच सी तानसैन गवैया। तानसैन बड़े सोहने सोहने साज बजांदा ते गाउंदा सी, ठीक है जी। ते अकबर बड़ा खुश सीगा। अकबर ने एक दिन सवाल किया, कहंदे तानसैन तू इतना सोहना राग गाउना है, बड़ा आनंद आउंदा है, बड़ा मजा आउंदा है, मंत्र मुग्ध हो जाइदा है, ते ये तू कितों सिक्ख्या? कहंदा जी मेरा गुरु है, मेरा उस्ताद है हरिदास। कहंदे वो हरिदास है? कहंदे हाँ है। कहंदे जे तू इतना सोहना गाउना है ते जिस उस्ताद को तू सिक्ख्या वो भी तो फिर बड़ा सुंदर गाउंदा होएगा। कहंदे उन्नू कहंदे राज दरबार विच लैके आ, ओदा भी कहंदे गाना सुनिए, ओदा भी कहंदे गीत सुनिए, ओदियां भी कहंदे सिफतां सुनिए। कहंदे माफ करना राजन, वो तेरे दरबार विच नहीं आवेगा। कहंदे क्यों? कहंदे जे उन्नू सुनना ते ओदी झुग्गी विच जाना पवेगा, जे उन्नू सुनना ते ओदी झुग्गी विच जाना पवेगा। अकबर कहंदा चल फे, कहंदा उत्थे चलीए। जदों अकबर उत्थे गया, रात कहंदे जाना पवेगा, रात नूं 12 बजे। कहंदे कोई गल नहीं चलांगे। 12 बजे हरिदास जिहड़ा सी ना वो दरिया दे विचों इशनान करके बाहर आया। जदों इशनान करके बाहर आया ते अपनी झुग्गी दे विच जा के ते वो मधुरमई जिहड़ा संगीत सीगा वो गा रिहा। ते जदों अकबर ने सुनिया ना, अकबर ने सुनिया ते इतना उते असर होया, वो उथे ही जड़ हो गया। जड़ समझदी है, एक थां ते इकट्ठा हो गया, मूर्ति बन गई। उन्हें अपने संगीत की समाप्ति की। अकबर कहंदा तानसैन गाउंदा ते तू भी बड़ा वधिया है, पर अज जो मैं सुनिया इहदे नाल मैं जड़ हो गया। गल की है? कहंदा तानसैन कहंदा राजन मैं गाउना हाँ तेरे रुपइयां दे वास्ते कि तू मेरे ते खुश हो गए रुपये देवेगा। ये गाउंदा है परमात्मा नू खुश करने वास्ते। मैं बेनती करना चाहुंदा सारे रागियां नू, प्रचारकां नू अपने समेत, जदों तुसी गुरु दी गोदी विच बहिंदे हो ना, उदों रुपइयां वास्ते ना गाइए, उदों परमात्मा नू खुश करने वास्ते गाइए। जदों परमात्मा नू खुश कर दियांगे फिर वो साडे भंडारे अपने आप सारे भर देवेगा। गावीए सुनिए मन रखिए, उस परमात्मा दे नाल प्रीत करके उन्होंने गा, उस परमात्मा नाल प्रीत करके उन्होंने सुन। इन्नियां को बेनतियां अज तक प्रवान करनियां। हुण तक कल नूं आपां अगली पौड़ी सोचिया सी, सवेरे 2 पौड़ियां करनियां ते भाई साहब कहंदे नहीं बाबा जी इदां ना करो, चलो आप जी दे महापुरुषां दे वचन पूरे हो गए, अज अद्धी पौड़ी हुई। इतनियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की